Okay, so this is the first sentence of sentence completion. Those people who are interested in dash today are concerned about the effect of toxic waste on our environment. Now, as I've mentioned before, we never, jump to the options first. We will always first, when solving sentence completion questions, we will always first try to come up with the answer on our own, and then we'll try to match the options with the answer that we think can come in the blank that we have, right? So reading this, and if we find the keywords over here, reading this telling us is telling us that the people who are concerned about the effect of toxic waste on our environment, right? So it's about the people who study the environment, right? So जाहिर है वही लोग होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे इसके अंदर। तो ऑप्शन के अंदर भी फिर हम यही देखेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हैं और वही फिर इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड भी होंगे। We talk about sociology, cannot be your answer. Why? Because sociology is the study of human behavior. लोग कैसे interact करते हैं, कैसे होता है, it has nothing to do with the environment. आप evolution की बात करो, again it cannot be your answer. Why? Because evolution is the study of how the human beings have evolved and it has nothing to do with environment. Entomology again cannot be your answer. Why? Because it is the study of insects, right? So this is insects. This is how the humans have evolved over time, and this is behaviors, right? It's only ecology that studies what? That studies environment, and that is why the answer to this question will be D. Okay, so promotion in that company was based all too frequently on favoritism rather than on dash. So the key word for me in this question was rather than. अब rather than से पता ये चलता है कि rather than से पहले जो भी चीज लिखी होगी rather than के बाद उसका पॉजिटिव आना चाहिए, उसका ऑपोजिट आना चाहिए, राइट? तो अगर rather than से पहले एक नेगेटिव वर्ड लिखा है आगे पॉजिटिव आएगा, rather than से पहले अगर एक पॉजिटिव वर्ड लिखा है तो आगे नेगेटिव आएगा, राइट? सो फेवरेटिज्म इज व्हाट? फेवरेटिज्म इज अ नेगेटिव वर्ड, राइट? किसी को फेवर करना, अनड्यू फेवर करना, दिस इज नेगेटिव. सो वी नीड अ पॉजिटिव वर्ड आफ्टर रादर देन एंड समथिंग दैट इज द ऑपोजिट ऑफ favoritism. So nepotism is the favoritism to relative. Again same thing, cannot be your answer. रिलेशनशिप अगेन फेवरेटिज्म. सीनियोरिटी अगेन इररेलेवेंट, कोई कितना भी सीनियर हो जाए, सीनियर होना अहलियत की अलामत नहीं होती, ठीक है? अहलियत इज एबिलिटी. यू कैन नॉट, इफ यू कैन नॉट गिव द प्रमोशन ऑन the basis of favoritism, then it has to be on the basis of ability, right? So the answer to this question will be D. My dash were dash when I heard his explanation. Now I have two blanks in this sentence. Whenever you have two blanks in a sentence completion question, it gets a bit tricky, right? Now I still won't go to the options. I'll first try and understand from the sentence only what is going to be the answer. My dash were dash when I heard his explanation. I had something, सही है, which जिसको कुछ हो गया and I don't know what happened, right? I'll read the sentence आगे. I was convinced. तो अगर मैं अभी कन्विंस हुआ हूं तो इसका मतलब ये है कि पहले ब्लैंक में कुछ ऐसा आना चाहिए जिसका मतलब क्या हो? डाउट, राइट? एंड दैट ही वाज टेलिंग द ट्रूथ. तो अगर मैं इस चीज पे कन्विंस हुआ हूं, क्योंकि अगर मैं अब कन्विंस हुआ हूं तो इसका मतलब ये कि मैं पहले कन्विंस नहीं था, और पहले कन्विंस नहीं था तो इसका मतलब क्या? पहले मेरे दिल में डाउट्स थे. ही वाज टेलिंग द ट्रूथ, तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो सच कह रहा है तो मैं, जो मेरा डाउट था वो खत्म हो जाएगा ना, मेरा डाउट खत्म हो गया. तो इट वाज eliminated. आप मेरे पास वर्ड्स आ गए, अब मैं ऑप्शंस के अंदर इस जैसे कोई वर्ड्स देखूंगा, ठीक है ना? सस्पिशंस हो सकता है, मिसगिविंग्स हो सकता है, कंपेनियन नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही आउटराइट एलिमिनेट हो गया. और डाउट्स भी हो सकता है. लेकिन अब इन तीनों में दूसरा ब्लैंक कहाँ पे फिट हो रहा है? सस्पिशंस कंफर्म नहीं हुए थे, मिसगिविंग्स अराउज नहीं हुई थी, डाउट्स डिस्पेल हो गए थे, इसलिए आंसर आपका डी होगा. आंसर ऑप्शन आंसर आपका हो जाएगा इसमें डी, ठीक है? सो द डाउट्स वर डिस्पेल्ड बिकॉज कन्विक्शन किस चीज पे आई है कि वो सच बोल रहा है. अगर यहाँ पे ये होता कि वो झूठ बोल रहा है तो फिर डाउट्स बढ़ जाते, अराउज हो जाते या कंफर्म हो जाते. Although she was normally a dash individual, she attacked the heckler who had been interrupting her speech. Now, if you look at this sentence, important word over here is although. Because if you have a sentence that has two parts and it starts with although, if the first part of the sentence is positive, the second has to be negative. If the first is negative, the second has to be positive. अगला और पहला जो है वो ऑपोजिट होना चाहिए. तो अगर वो आगे पहले वाले ब्लैंक में, पहले वाले पार्ट में तो हमारे पास ब्लैंक है, तो वी डोंट नो नॉर्मली वो कैसी थी. बट अगर उसने अटैक किया है क्लियर को, ठीक है, और ये बाय अटैक इट मींस के वर्बल अटैक किया, तो इसका मतलब नॉर्मली वो काम पर्सनालिटी होगी, राइट?
तो क्योंकि अगर यहाँ पे ये लिखा होता आगे कि शी टॉक्ड विद द हेकलर पीसफुली, उसका मतलब ये है कि फिर वो नॉर्मली इस तरह की होती जो अटैक करता है, जो सही से बात नहीं करता, राइट। तो अब यहाँ पे हम ऑप्शंस को देखेंगे तो परसेप्टिव का मतलब तो क्या होता है, समवन हु इज वेरी इंसाइटफुल, राइट, समवन हु इज इंटेलिजेंट, और इंसाइटफुल इज अ गुड वर्ड फॉर इट। पुसिलैनिमस इज कावर्डली, राइट, कावर्ड। अगर यहाँ पे बात हो रही होती किसी ऐसी चीज की, अगर यहाँ पे बात हो रही होती फिजिकल अटैक की, तो फिर हम पुसिलैनिमस ले सकते थे। कॉलरिक भी जो चीख पुकार करता है, जोर से बात करता है, वो कॉलरिक होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, जो ऑपोजिट है अटैक का, वर्बल अटैक का, वो है पीसफुल, ठीक है। शी अटैक्ड द हेकलर बट नॉर्मली शी इज अ डैश इंडिविजुअल। तो द आंसर टू द क्वेश्चन इज सी। The doctors have ordered additional tests because the patient has not dash as rapidly as had been expected. अब देखें, एक चीज का ख्याल रखें कि जब भी ब्लैंक से पहले नॉट आ जाए तो जैसा वर्ड ब्लैंक में आना चाहिए उसका ऑपोजिट आएगा, ठीक है। अगर ब्लैंक से पहले नॉट लिखा हुआ है और ब्लैंक में हैप्पी आना चाहिए तो हम ब्लैंक में सैड लिखेंगे, क्योंकि नॉट सैड का मतलब हैप्पी बन जाएगा, राइट। तो अगर डॉक्टर ने एडिशनल टेस्ट लिखे हैं तो इसका मतलब क्या है कि तबीयत ठीक नहीं हुई है, सही है, तबीयत खराब हो गई है। लेकिन क्योंकि ब्लैंक से पहले नॉट लिखा हुआ है तो वी विल पिक अप अ वर्ड जिसका मतलब है ठीक हो जाना। तो जब वो नॉट के साथ लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसका मतलब बन जाएगा कि वो खराब हो गई है, ठीक है। तो आइटरेट का मतलब तो होता है रिपीट करना, ये तो इररेलेवेंट हो गया। क्वालिफाइड लिमिटेड, ये भी इररेलेवेंट हो गया। अब ये रिकैप्युलेट और डिटेरिएट का में से कोई एक आंसर होगा। अगर ब्लैंक से पहले नॉट नहीं होता तो हमारा आंसर ये होता डिटेरिएट, ठीक है। इसका मतलब होता है खराब हो जाना, टू वर्सन। मगर क्योंकि ब्लैंक से पहले रिकैप्युलेट लिखा है तो इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि जब मैं कहूंगा नॉट रिकैप्युलेट तो मतलब क्या होगा कि वो सही नहीं हुआ, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी। Okay, so the owner of the spa advertised that their dash were specially dash for the arthritic. Now, the first thing that we need to understand is that the owners of the spa were advertising something. So whenever you advertise, it has to be something that you have and a quality of something, a positive quality of something that you had. Obviously, आप कभी भी अपनी किसी चीज की नेगेटिव क्वालिटी को एडवर्टाइज नहीं करेंगे, और जो चीज आपकी नहीं है आप उसको भी एडवर्टाइज नहीं करेंगे। तो पहले चीज तो आप सी काट देंगे, क्योंकि स्पा के अंदर माउंटेन्स नहीं होते। तो स्प्रिंग्स, वाटर्स एंड वाटर्स, ये तो आपके आंसर तीनों हो सकते हैं। लेकिन इसमें आप ये देखेंगे कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसमें नेगेटिव, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें नेगेटिव क्वालिटी को हाईलाइट किया जा रहा है। तो टॉक्सिक नेगेटिव है, डिलीटरस नेगेटिव है। कोई भी अपने प्रोडक्ट की नेगेटिव क्वालिटी को अगर है भी तो वो हाईलाइट या एडवर्टाइज नहीं करता। एडवर्टाइज हमेशा पॉजिटिव क्वालिटी की जाती है, राइट। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, क्योंकि इसमें एक तो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जा रहा है और पॉजिटिव क्वालिटी को किया जा रहा है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। The trite and dash situations in many television programs alienate many viewers. Now, I have two keys for this question. The first is this and the second is alienate, right? अगर मेरे पास ट्राइट के बाद एंड, ट्राइट के बाद एंड लिखा है तो इसका मतलब एंड के बाद कोई ऐसा वर्ड आएगा जिसका मीनिंग है सिमिलर टू ट्राइट, एक चीज। और एलिनिएट का मतलब होता है अलग कर देना, जुदा कर देना, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जो व्यूवर्स को एलिनेट कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि व्यूवर्स उस चीज को देख चुके हैं पहले ही टीवी पे। अगर एक चीज पहली दफा मैं देख रहा हूँ, कोई लाइव क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, तो मैं एलिनेट नहीं होऊंगा, मैं उसको देखूंगा। लेकिन अगर मैं 10 दफा देख चुका हूँ तो मैं बोलूंगा यार अब मैं देख चुका हूँ, इसको अब देखने का फायदा नहीं है। समथिंग दैट यू कैन प्रेडिक्ट, समथिंग दैट यू नो। तो नॉवेल यहाँ पे इट इज इररेलेवेंट, अनप्रेडिक्टेबल तो एलियनेट नहीं करेगा। अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन अगर आएगी टेलीविजन प्रोग्राम पे तो वो तो लोग देखेंगे, राइट। और स्ट्रेंज भी इररेलेवेंट है यहाँ पे। आंसर इज प्रेडिक्टेबल, which is also a synonym for trite, which by the way means commonplace or banal, right. Answer this question is A. Ever since Pearl Harbor, we realized that we have to be dash on the alert to prevent a sneak attack from the adversary. Now, sneak attack is छुप के हमला, right? तो छुप के हमला कब हो सकता है? छुप के हमला कभी भी हो सकता है, सही। तो अगर कभी भी कोई चीज हो सकती है तो उससे बचने के लिए हर वक्त हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो इसमें बाकी ऑप्शंस को देखने की भी जरूरत नहीं है, इसका आंसर सीधा सीधा ए होगा। बिकॉज इफ इट इज एन अटैक दैट कैन हैपन एनी टाइम, तो वी हैव टू बी ऑन द अलर्ट all the time, constantly, right? The answer to this question is A. We find it hard to believe
that there is no dash between the resignation of the company treasurer and the missing found. Now, we find it hard to believe that there is no competition. Obviously, the missing found and the treasurer won't have any competition. They won't have any understanding and they won't have any cohesion, right? They can have, although, a connection, right? Okay, why the missing found, why something is missing, right? तो ये इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए the best option is A, that is the answer. Since you disagree with John's argument in this dispute, your dash of his position is dash. Now, दो keywords हैं, disagree, ठीक है, dispute. अगर किसी dispute में आप किसी से disagree कर रहे हो, तो आप उसको endorse नहीं करोगे, आप उसको approve नहीं करोगे, और आप उसको disapprove करोगे. जाहिर सी बात है, ठीक है. तो endorsement logical नहीं हो सकती, approval understanding नहीं हो सकती, understandable. क्यों? Why? Because you're disagreeing ना. So how can your approval be understandable? People would say that if you were disagreeing, how can you approve him, right? Or disapproval unexpected नहीं है, right? If you're disagreeing with someone, your disapproval is expected, it is on the cards. Support will be hypocritical, right? Hypocritical is two-faced, right? So if people would say that if you're disagreeing with him, why are you supporting him? If you're doing it, then you're hypocritical, right? The answer to the question is A.